بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خواتین و حضرات، اس زندگی میں ہر انسان پریشان ہے اور ہر انسان یہ شکوہ کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں جتنی مشکلات ہیں کسی اور کی زندگی میں اتنی مشکلات نہ ہوں گی۔ اگر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں تو اس خواجہ سرا کی زندگی کو سنیے، شاید آپ میں بھی جینے کا شوق پیدا ہو جائے۔ میرا نام سمیر ہے، میں نہ تو مردوں سے ہوں نہ عورتوں سے۔ لوگ مجھے ٹرانسجینڈر کہتے ہیں، یعنی خواجہ سرا۔ میرے ابا تو تب فوت ہو گئے جب میں 10 سال کا تھا۔ میرا جسم تو لڑکوں سا تھا لیکن میرا من لڑکیوں سا۔ مجھے لڑکیوں کی طرح سجنا سورنا اچھا لگتا تھا۔ مجھے لڑکیوں کے کپڑے پہننا، جوتے پہننا اچھا لگتا تھا۔ میری ماں ایک سکول میں استانی تھیں۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی ہجڑا، وہ بہت پریشان ہوئی اور بہت روئی، لیکن وہ مجھے کچھ نہ کہتی۔ میں لپسٹک لگایا کرتا، مجھے سر پر دوپٹہ اوڑھنا اچھا لگتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات پورے محلے کو پتہ چل گئی کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں۔ میری ماں مجھے پڑھانا چاہتی تھی۔ امی مجھے بہت پیار سے سمجھایا کرتی تھیں، بیٹا یہ لوگ، یہ معاشرہ بہت غلط ہے، اگر جینا چاہتے ہو اچھا انسان بن کر جیو، لوگوں کا سامنا کرنا سیکھو۔ میں بھی ہمیشہ ایک اچھا انسان بننا چاہتا تھا، ایک بڑا آفیسر۔ میں دل لگا کر پڑھائی کرتا۔ میری 2 بہنیں تھیں، میں اکیلا ہی بھائی تھا، یوں کہہ لے نہ بھائی نہ بہن۔ اسکول میں میرا مذاق بنایا جاتا، میں کیا کرتا؟ میرا لہجہ لڑکیوں سا تھا، میں بہت روتا تھا، لیکن میری ماں میرا سہارا تھی۔ وہ مجھے بہت سمجھایا کرتی، بیٹا زندگی میں ایسے بہت سے مقام آئیں گے لیکن تم نے ہارنا نہیں۔ میں اسکول سے کالج چلا گیا، وہاں میرے لیے اور بھی مشکلات بڑھ گئیں۔ اللہ پاک نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ کالج کے لڑکے مجھے تنگ کرنے لگے، میں برداشت کرتا رہا۔ اذیت کے دن گزرے، یونیورسٹی چلا گیا، میں سافٹ ویئر انجینئر بن گیا، بہت خوش تھا۔ میں لوگوں کو زندگی سکھانا چاہتا تھا، میں لوگوں کو محبت کرنا سکھانا چاہتا تھا، میں رشتوں کو نبھانے کی بات کرنا چاہتا تھا، میں جہالت کو ختم کرنا چاہتا تھا، میں نے دین بھی سیکھا۔ میں چاہتا تھا میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر جاؤں۔ جب پڑھائی مکمل ہو گئی پھر نوکری کی تلاش کرنے لگا۔ میں نے سب سے پہلے پولیس میں اپلائی کیا، لیکن افسوس مجھے قبول نہ کیا گیا۔ مجھے خواجہ سرا کہہ کر نکال دیا گیا۔ میں نے بہت سے اداروں میں کوشش کی لیکن سب نے مجھے عجیب طریقے سے ریجیکٹ کر دیا۔ لوگ اپنی اپنی مرضی سے میرا نام بلاتے، کوئی بلو رانی کہتا تو کوئی چھمک چھلو۔ میں خاموش ہو جاتا۔ اماں جان کی اسکول کی سروس پوری ہوئی، جو پینشن ملی 2 بہنوں کی شادی کر ڈالی۔ میں اتنا پڑھ کر بھی ذلیل ہو رہا تھا کیونکہ لوگ مجھے صرف ایک ناچنے والا ہجڑا سمجھتے تھے۔ میں نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا چاہی لیکن کوئی بھی اپنے بچوں کو میرے پاس پڑھانے کے لیے نہ بھیجتا۔ میں کیا کرتا؟ میرا قصور کیا تھا؟ یہ سب تو اللہ نے بنایا تھا، میں کہاں غلط تھا؟ اماں جان بیمار رہنے لگی، میں نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ بہت سے لڑکوں نے میرے ساتھ دوستی کرنا چاہی اور بہت سے لوگوں نے غلط تعلقات بنانا چاہے۔ میں تن سے خواجہ سرا تھا، من سے ایک اچھا انسان۔ میں ہر جھگڑا کرنے والے کو سمجھاتا، پیار کا درس دیتا۔ شاید لوگ میری باتوں کو مذاق سمجھتے۔ میں لوگوں کو بتاتا اپنا ضمیر بریانی کی پلیٹ سے نہ بیچ دیا کرو، ایک باشعور قوم بنو، لیکن میری بات بے معنی ہوتی۔ پھر ایک دن مجھے کچھ لڑکوں نے اغوا کر لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں، خون ہے۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آ رہا تھا، مجھے اغوا کر لیا گیا۔ وہ لڑکے میرے گاؤں کے تھے، ساتھ کوئی اجنبی لڑکے بھی تھے۔ مجھے گن دکھا کر ڈرایا گیا، مجھے کہنے لگے چل بلو رانی ڈانس کر۔ میں سافٹ ویئر انجینئر پڑھا لکھا انسان تھا۔ ان سے میں نے بہت کہا پلیز میں ایسا نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ ایک آگے بڑھا، مجھے تھپڑ مار دیا، گالی دے کر بولا ناچ ورنہ بہت برا حال کر دوں گا۔ میرے ساتھ زبردستی کی گئی، مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ میں چیختا چلاتا رہا، آخر میں اس معاشرے کی ہوس کا نشانہ بن گیا۔ مجھے میرے گھر کے سامنے پھینک دیا گیا۔ میں رو رہا تھا، گھر آیا، امی کو آواز دی، لیکن کب جانتا تھا ایک اور قیامت میری منتظر ہے۔ امی کے پاس پہنچا، امی سو رہی تھی۔ جب امی کو بار بار آواز دی، امی نے آنکھ نہ کھولی۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ جب میری چیخیں امی نہ سن سکی، مجھ پہ قہر گزرا۔ امی دنیا سے چل بسی ہیں، میں کس کو بتاتا مجھ پہ درد کا پہاڑ گرایا گیا ہے۔ رونے لگا۔ محلے والے بھی آ گئے، بہنوں کو بلوا لیا۔ میرا ایک سہارا تھا، وہ بھی نہ رہا۔ امی کو دفنایا، کچھ دن بہنیں گھر رہیں، پھر اپنے گھر چلی گئیں۔ میں اکیلا رہ گیا۔ ایک سکول میں ٹیچنگ کرنے لگا، لیکن ابھی مشکلات ختم کہاں ہوئی تھیں۔
उन लड़कों ने मेरी वीडियो बना ली थी। वीडियो वायरल हो चुकी थी। मेरा माशरा मुझे गंदी गालियां देने लगा। जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया वो सब पारसा थे। हाँ, पुलिस के पास गया था ना उनकी कंप्लेन दर्ज करवाने, लेकिन क्या हुआ, मेरे साथ ज्यादती करने वाला एक पुलिस वाला भी तो था ना। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, यहाँ तक कि मुझे गांव से भी निकाल दिया गया। न घर था, न पैसा, न कोई सहारा, सिर्फ अल्लाह ही था और अल्लाह ही है। मैं लड़कियों के कपड़े पहने बाजार में बैठा हुआ था। एक ख्वाजा सरा भीख मांगते हुए मेरे पास आया। ए बहन, क्यों बैठी है यहाँ? मैं उसकी तरफ देखकर खामोश रहा। वो कहने लगा, मेरा नाम शबनम है, तुम भी हमारी बरादरी की हो ना? मैंने चुप साध रखी थी। शबनम ने मेरा हाथ पकड़ा। हाय नी, मैं मर जावा, तुमको कितना बुखार है, चला मेरे साथ। उसने मुझे सहारा दिया, मुझे चलने के लिए कहा। मैं उसे क्या बताता कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ। भीख मांगने की हिम्मत न थी। मेरे कंधे पे जो बैग था उसमें मेरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की डिग्रियां थीं और 2 दिन से भूखा था। उसने किसी को फोन किया, नहीं बाजी, अपनी एक बरादरी का मिला है, उसकी सेहत बड़ी खराब है, जल्दी आ। मुझे कार में बिठाकर एक घर में ले गए। घर बहुत खूबसूरत था। वहां सब के सब ख्वाजा सरा थे। सब मेरे गिर्द जमा हो गए। गुरु भी आया। हाय माँ, सदके जाए, क्या हुआ मेरे लाल को? जानी पीनो, डॉक्टर को बुला कर ला। मैं ना चाहते हुए भी उन लोगों में पहुंच गया था। डॉक्टर ने चेक किया, मुझे इंजेक्शन लगाया। मैंने बताया मैं 2 दिन से भूखा हूँ। बहुत दिनों बाद मजे का खाना खा रहा था। मैं देख रहा था सब में बहुत प्यार था, सब बहुत खुश थे। गुरु मेरे पास आकर बैठी। मेरी बच्ची, क्या हुआ, कहाँ की हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम समीर है। गुरु ने प्यार से पूछा, किसकी चेला है? मैं नहीं जानता था चेला क्या होता है। मैं चुप रहा। गुरु मेरा सर दबाने लगी। मुझे सबने बहुत प्यार दिया। मैं हैरान था, ये भी इंसान हैं, ये भी अल्लाह के बनाए हुए हैं, ये भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। मैं कुछ दिन वहां रहा। गुरु ने कहा, बेटी, जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ये लोग बहुत जालिम हैं। मैं कहती हूँ मेरी चेला हो जा। मैं क्या करता, कहाँ जाता? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरे कानों में बालियां डाली गईं। मुझे चेला कर लिया गया। मेरे पैरों में घुंघरू बांधे। मैं बेबसी में बेहाल हो गया। मैंने बैग से डिग्री निकाली जिस पे लिखा था मिस्टर समीर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पैरों की जानिब देखा, घुंघरू बांधे हुए। मुझे डांस सिखाने लगे। मुझे शादी ब्याह पे साथ ले जाने लगे। मैं बहुत खूबसूरत था। मुझे नाचने का कहा जाता, लेकिन मैं थक जाता। मेरे पैरों में दर्द होता। दूसरे सब ख्वाजा सरा मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरे पांव तक दबाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस दलदल में डूबने लगा। मैं नाचता तो लोग मेरे ऊपर पैसों की बरसात करते। लोग मुझे रात की ऑफर भी करते। मैं इनकार कर देता। कभी कभी किसी शादी में कोई शराब पीकर हम पे तशद्दुद करता। पेट की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर जाते। रफ्ता रफ्ता मैं मशहूर होने लगा। मैं ख्वाजा सराओं की टॉप लिस्ट में शुमार होने लगा। लाखों रुपए एक प्रोग्राम के कमाने लगा। मैं क्या बनना चाहता था, लोगों ने मुझे क्या बना डाला। जिस गांव से मुझे बदनाम करके निकाला गया था, उसी गांव में चौधरी के बेटे की शादी में मुझे लाखों पे बुलवाया गया। मुझे किसी सेलिब्रिटी की तरह रखा गया। मेरे साथ तस्वीर बनवाई सबने। वक्त कैसे बदला था। मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहता था, सब मुझे बदनाम करने पर तुले थे। मैं बदनाम हुआ तो सब लोग इज्जत देने लगे। मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त सब कहीं न कहीं सेटल हो चुके थे। मैं मशहूर ख्वाजा सरा बन गया था। मैं घुंघरू पहने घंटों नाचता रहता। लोग मुझे देखकर सीटियां बजाते और मेरे जहन में जो पढ़ाई चल रही होती थी, मैं जो भी था साहिब इल्म था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एक काबिल तालिब इल्म था। बस फर्क ये था माशरा ने मुझे कबूल नहीं किया। वो मुझे नाचता हुआ देखना चाहते थे और मुझे डांसर बना ही दिया। एक दिन मैं एक मोबाइल की शॉप पर खड़ा था। वहां एक शख्स लैपटॉप लिए परेशान था, जो कह रहा था इसमें मेरा बहुत कीमती डाटा है, कोई भी इसे ठीक नहीं कर पा रहा। मैंने उस शख्स से कहा, सर क्या मैं एक बार ट्राई करूं? वो मेरी तरफ देखकर बोला, वाह, मशहूर जमाना ख्वाजा सरा मैडम परी को कंप्यूटर का भी इल्म है। मैं मुस्कुराने लगा। जैसे ही लैपटॉप ऑन किया, मुझे प्रॉब्लम की समझ आ गई। 20 मिनट में मैंने ठीक कर दिया। वो शख्स हैरान था। वो खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो मेरी काबिलियत पर रश करने लगा। मैं कार में बैठा चला गया। रात को मुझे शादी पर जाना था नाचने के लिए। मैं तैयार हुआ। अलमारी से अपने सारे कागजात निकाले। एक ख्वाब जो मुझे तड़पाता था। मैं एक इज्जत की पाकीज़ा जिंदगी चाहता था, लेकिन माशरा ने मुझे गंदगी में धकेल दिया। मुझे याद है रात में बीमार था। 7 घंटे तक मुसलसल नाचता रहा। मेरा बीमार होना किसी को नजर नहीं आया। बस मेरा नाचना लोग एंजॉय कर रहे थे।
प्रोग्राम से घर गया, थक चुका था। मोबाइल पे एक मेल आया हुआ था, मुझे यकीन ना हो रहा था। 2 साल पहले मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था। उन्होंने मुझे जॉब देने की ऑफर की। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कनाडा का वीजा ऑफर किया। मैं चीख चीख कर रोने लगा। मेरा ख्वाब पूरा हुआ था, मेरे पास सब आ गए, क्या हुआ परी। मैंने आंसू साफ किए, सबको बताया मुझे जॉब मिल गई। सब बहुत खुश हुए। मैंने बाल कटवाए, फिर से समीर बना। सब ख्वाजा सरा रो रहे थे। मुझे लाखों दुआओं में विदा किया गया। मैं 2 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करता रहा। पाकिस्तान के हिसाब से मेरी तनख्वाह 11 लाख थी। मैं बहुत खुश था। मेरी काबिलियत देखकर 5 साल में मुझे मैनेजर डायरेक्टर बना दिया गया। मैं हैरान था, इन लोगों ने मुझे ख्वाजा सरा कहकर रिजेक्ट नहीं किया। ये लोग क्यों मेरी इतनी इज्जत करते हैं। इन लोगों ने मुझे बड़ा घर, गाड़ी, नौकर सब कुछ दिया है। ये लोग मुझे क्यों नहीं कहते नाचने के लिए। ये लोग क्यों मुझे माशरे की गंदगी नहीं समझते। हर कोई मुझे सर कहकर मुखातिब करता है। फिर मैं अपने माशरे के बारे में सोचने लगा, कितनी नफरत भरी है मेरे माशरे में, किस कदर जहालत में डूबा हुआ है मेरा माशरा। मेरा माशरा आजादी की बजाय गुलामी को तरजीह देता है। मैं चीख चीख कर कहता रहा, मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। मेरा माशरा कहता रहा, तुमको कंजरी बनकर नाचना है बस। मैं सोचता हूँ मैं हिजड़ा नहीं हूँ। मेरे माशरे का हर फर्द हिजड़ा है, जिसके जमीर मुर्दा हैं, जिनका शऊर मट्टी की खाक है, जो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। जो कौम बिरयानी की एक प्लेट पे अपना जमीर बेच दे, उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा। आज का मैनेजर डायरेक्टर चीख चीख कर कहता रहा, मुझे आने वाली नस्ल के लिए कुछ करने दो। मेरे पैरों में घुंघरू बांधकर मुझे कंजरी बनवा कर नचवाते रहे। इंग्लिश कौम इसलिए कामयाब है कि ख्वाजा सरा को इज्जत देकर, उसकी काबिलियत देकर मैनेजर डायरेक्टर बना दिया, और मेरे माशरे ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ख्वाजा सरा बना दिया। छोटी छोटी बातों पर जानवरों की तरह खून बहाने वाली कौम खुदारा होश में आ जाए। मेरे साथ क्या हुआ, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, बस मैं अपने माशरे की तरजीहात बता रहा हूँ। ख्वाजा सरा भी इंसान होते हैं, इसे अपने माशरे में जगह दें। इसे सिर्फ नाचने वाला न समझें। स्कूल, कॉलेज, गली मोहल्ले में अगर कोई बच्चा ऐसा है तो उसकी हिम्मत बने, ना कि उस पे तंज करें। लंगड़े को लंगड़ा कहना, अंधे को अंधा, ख्वाजा सरा को हिजड़ा कहने की बजाय उनके असल नाम से पुकारें। अल्लाह जिसे चाहे वैसा बना दे। अगर आपको ही अल्लाह कोई मूजी बीमारी में मुब्तला कर दे तो आप क्या करेंगे। याद रखें, बाज़ अमीर कौमें इतिहास लिखती हैं, बाज़ अमीर कौमें तारीख लिखती हैं। किसी ख्वाजा सरा को मैनेजर डायरेक्टर बनाकर चाय की प्याली पे ईमान बेचने वाली कौमें सफाए हस्ती से मिटा दी जाती हैं। एक साहिब इल्म समीर को ख्वाजा सरा बनाकर आखिर हम क्यों इतने बेरहम बन गए हैं, आखिर क्यों फितनों में डूब गए हैं। आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और रहम दिली का हुक्म नहीं दिया? अगर दिया है तो आप खुद को कैसे मुसलमान कह सकते हैं, नफरतें फैलाकर। मुसलमान तो मोहब्बत का दरिया है। आप क्या हैं, जरा सोचिए।